Good morning, students. Today we are going to discuss the exercise of chapter 6, that is combustion and flame. Right? So, first question of the exercise, list conditions under which combustion takes place or combustion can takes place. Right? So, we have already discussed the conditions or suitable conditions for the combustion of fuel, right? First of all, there should be a combustible substance, right? Without combustible substance, combustion cannot take place. So this is the basic condition, right? Second thing is ignition temperature. Attainment of ignition temperature. It means the temperature of the combustible substance should be higher than the ignition temperature. Otherwise, the substance will not catch the fire, right? And the third and important factor, that is proper supply of air to provide oxygen. The three things are required. One is combustible substance, second thing the temperature should be higher than ignition temperature, and the third thing is oxygen, right? Now question number 2, this is fill in the blanks. A part, burning of wood and coal causes dash of air. So what are the consequences of burning of wood and coal? That is pollution, air pollution, right? Second, B part, a liquid fuel used in home is, now liquid fuel used in our home is kerosene, right? This is the liquid fuel. LPG is the gaseous form, right? Fuel must be heated to its dash before it starts burning. So what should we fill over here? That is ignition temperature, right? A substance catches fire when its temperature is above than the ignition temperature. And the D part, fire produced by oil cannot be controlled by water, since the density of oil is less than the water. तो क्या करेंगे, अगर उस पर हमने वाटर जेट से वाटर उस पर पॉर किया तो क्या होगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, ऑयल जलने लगेगा, राइट? तो फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द वाटर, राइट? Now the third question, explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our city. Means we have to discuss over here कि CNG is better fuel for the vehicles, for the automobiles in place of petrol and diesel, right? The use of CNG in place of petrol and diesel reduce pollution in the following way. You know that CNG is a clean fuel, compressed natural gas. The number one point, it produces less carbon monoxide gas, right? The CNG produces less carbon monoxide gas. Second, it produces less carbon dioxide gas. It also produces less quantity of carbon dioxide, right? It produces less amount of sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which causes acid rain, right? Now the fourth one is, it reduce, no residue remains after combustion. After the combustion of CNG there is no रेजिड्यू, मीन्स जो बचा खुचा होता वो नहीं बचता. CNG जो है वो कंप्लीट कम्बसन होता है उसका. तो देखिए
सीएनजी अगर पेट्रोल और डीजल की जगह यूज किया जाता है, सीएनजी के इंजन यूज किए जाते हैं ऑटोमोबाइल्स में, तो क्या होगा, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बहुत कम अमाउंट में आएंगे। तो इनसे होने वाले जो नुकसान है, जैसे एस्थमा, जैसे कि एसिड रेन, ठीक है ना, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वो बहुत कम होगा। और इसका जो वो होता है, कम्बसन होता है, वो कंप्लीट कम्बसन होता है, 100% कम्बसन होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल। हम एलपीजी कुकिंग में यूज करते हैं, वुड भी जो है कई जगह पे खाना बनाने के काम में यूज किया जाता है। तो उन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए, एलपीजी इज गैसियस फ्यूल, एलपीजी गैसियस फॉर्म में होता है, जबकि वुड जो है वो सॉलिड फ्यूल होता है, ठीक। इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, इट प्रोड्यूसेस स्मोक। वुड से जो है जब आप इसको बर्न करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, ठीक है ना, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और एस्थमा होने के चांसेज होते हैं, सांस लेने की बीमारियाँ होती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत हाई होती है, 55,000 किलो जूल पर केजी, जबकि जो वुड होता है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सिर्फ 17,000 किलो जूल पर केजी होता है। यानी 1 केजी वुड अगर आप बर्न करते हैं तो आपको 17,000 किलो जूल की एनर्जी मिलेगी। इट इज़ इजीली स्टोर्ड इन सिलेंडर्स, बड़े आसानी से सिलेंडर में हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वुड को स्टोर करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा स्पेस होना चाहिए, स्टोर में जगह होनी चाहिए। इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, वेयर एट इट कॉज मोर पोल्यूशन। लकड़ी जलाने से जो है वो एयर पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें आपको रीज़न देने हैं, क्या कारण है इसका। वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाली फायर हो उसको कंट्रोल करने के लिए वाटर यूज नहीं करती फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड की टीम जो है वाटर जेट यूज नहीं करती। उसका कारण ये है कि वाटर इज ए कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा होता है। वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मे रिजल्ट इलेक्ट्रिक शॉक, राइट। नेक्स्ट है, एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। एलपीजी जो है वो वुड से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एलपीजी की अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू वो कितनी होती है, 55,000 किलो जूल पर केजी, जबकि वुड की होती है 17,000 किलो जूल। यानी ये ज़्यादा एफिशिएंट है, एलपीजी ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। एलपीजी हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू एंड प्रोड्यूस नो पोल्यूशन, so it is better domestic fuel than the wood. And the third thing, the C part, paper by itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around the aluminium pipe does not. अगर आप पेपर को फायर के पास ले जाते हैं तो बड़े आराम से जल जाता है, ठीक है ना। उसका कारण ये है कि अगर आप फायर के पास ले गए तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसका जब टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर पहुंच जाता है तो जलने लगता है। लेकिन अगर कोई एल्यूमिनियम का पाइप है और उसके ऊपर आपने उसको लपेट दिया, रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप, अब उसको आप आग के पास ले गए तो जलता नहीं। उसका कारण ये है कि एल्यूमिनियम मेटल है, और मेटल जो है वो हीट का कंडक्टर होता है। तो जब आप पेपर को हीट सप्लाई करते हैं तो हीट कहाँ चली जाती है, एल्यूमिनियम पाइप को। अब एल्यूमिनियम पाइप का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वो तो जलेगा नहीं, तो हीट सप्लाई करते चले जाते हैं, वो एल्यूमिनियम का पाइप उसे स्टोर करता चला जाता है, ठीक है ना। तो एक एक्टिविटी भी बताई थी हमने, जहाँ पे आपने पेपर का कप बनाया था, उसमें पानी डाला था, कैंडल के ऊपर रखा था,
तो पानी बॉयल होने लगता है लेकिन कागज़ नहीं जलता है, क्योंकि वाटर इज ऑल्सो कंडक्टर ऑफ हीट। इस तरीके से एल्यूमिनियम पाइप जो है हीट एनर्जी स्टोर करता चला जाता है। नाउ द आंसर, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज लेस, सो इट कैचेस फायर इजीली, राइट। It does not catch fire when wrapped around the aluminum pipe because aluminum is absorb the heat, so paper does not attain the ignition temperature। ठीक है ना, इस तरीके से हम इन सबके रीजंस दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।